जो मैं सिखाऊंगा you can just follow along. Later on you can see the recordings. आज की क्लास में उससे कोई रिलेशन नहीं होगा ज़्यादा. तो yeah, so everyone, I hope you guys have VS Code installed and opened on your PCs. Yes. Yes. Okay, so nice. And now I'll be sharing my screen. Just a second. Yeah. So can you guys see my screen? Yes. Yes. So we okay. So in the last class we actually made this. We actually wrote this code. If you guys remember. But if you guys don't have it, अभी आपके पास अगर ये नहीं है, तो फिर I'll be sharing you a link. यहाँ पे इस रिपोजिटरी पे जाके आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो. व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आपको लिंक. Web development. I hope everyone is in the web development channel. Link for this. So, so I have sent the link. इसको डाउनलोड कर लो. And today we will be understanding कि this how does code works. So अभी तो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो. By the time it downloads, you guys can just view my screen. I'll be explaining to you how this works. Okay. So if you guys hadn't attended the last classes, basically we built a program where you will need to enter your name first of all, and then उसके बाद OK पे click करके you guys would see a greeting customized to your name, and after that, as soon as you click on this plus button, the number would increase as per the number of times you click on the button. Okay. So we guys today we'll be understanding the logic behind this. How does inputting your name over here change it over here, and also how does clicking this button actually change the yeah, how does clicking on the button here change the number over here. Okay. So Bhaiya, where have you sent this code? मैंने WhatsApp पे भेज दिया ये. Is it also on Discord? Because I don't have WhatsApp available. Okay, Shama, could you please send it on Discord? Yeah, I think send कर देगा. So तब तक हमें स्क्रीन देख लो. अभी आपको कोड की जरूरत नहीं है. You guys just need to understand कि how I'm writing this code. ठीक है. So in the last class we understood the concept of IDs and classes in web development. So basically IDs and classes हम CSS में ज़्यादा यूज करते हैं. Classes especially. IDs हम लोग JavaScript में ज़्यादा यूज करते हैं because आपने देखा होगा कि मैं जितनी भी स्टाइलिंग कर रहा था उस टाइम CSS में. Let me show you once. It was all in classes, using classes. हाँ देखो यहाँ पे dot clicker, dot container. So if you guys don't remember it pretty well, you guys actually basically मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. So basically I am in class 12th B. Shamak and Jay are also in class 12th B. So we are multiple persons, we are multiple identities, but we belong to the same class. For example, Shamak is in the same class, I'm in the same class, Jay is also in the same class. So just like that in HTML also, multiple elements can also hold the same class. For example, over here I've given the class container to my div over here. Okay. So container, अगर I need to use another container sometime in my code, जब मेरे को बाद में कभी container की use करना होगा, I'd just write div class container और close my tag और उसके अंदर जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ, and it would behave in the same way जो कि पहले behave कर रहा है. So in this way, you can reuse styles and आपको बार बार वो same style लिखने की जरूरत नहीं है. Secondly, आपके पास IDs होती हैं. अब जैसे क्लास तो सेम हो सकती है हर एक चीज की, बट आईडीज आर अ बिट डिफरेंट. आईडीज हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है. फॉर एग्जांपल शामा की आईडी अलग है, मेरी आईडी अलग है, एंड जय की भी आईडी अलग है. ठीक है. सो ईच स्टूडेंट हैज इट्स ओन यूनिक आईडी इन द स्कूल, एंड क्लास could or could not be the same. I hope that is क्या बोलते हैं सर में आगे वैसे. If any doubts, yeah, Shashwat.
So basically, ID is roll number, right? It is ID is different for basically everyone. your admission number. Yeah. Because roll A roll number would number, be the same in every class. yeah, roll number could be be the same. For example, if I am roll number 10 in my class and somebody else is also roll number 10 in their class, the IDs would conflict, right? We do not want that. But admission number में क्या है, स्कूल में हर एक एलिमेंट की आईडी अलग होगी, एडमिशन आईडी अलग होगी हर एक स्टूडेंट की. तो दैट्स व्हाई आईडीज मैं बोलूंगा एडमिशन नंबर इज अ बेटर एग्जांपल. So, a small doubt. Yeah. If we, can't we just specify the class and then the ID? Do we have to make a different code for only ID? सी क्लास में तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लास का नाम, एंड मैंने फिर अपना CSS में क्या करता है ना, वी बेसिकली राइट डॉट टू स्पेसिफाई कि हाँ अब मैं जो कोड लिखूंगा यहाँ पे वो सारा का सारा मैं क्लास का लिखूंगा. सर यहाँ पे जो नाम लिखूंगा वो एक क्लास का नाम. ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर. तो मैंने यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखा एंड आई एम राइटिंग डॉट कंटेनर में यहाँ पे मैंने स्टाइल सेट दी. सो वेन एवर इन माई कोड जब मैं कंटेनर को वापस स्पेसिफाई करूंगा क्लास कंटेनर, तो वो कोड एग्जैक्टली वही रिपीट हो जाएगा. So, बट आई डू नॉट नीड टू. या I was asking कि for example हमने class ले ली container. अब container के आगे can we write ID maybe container 1? हाँ लिख सकते हैं. मतलब for the same thing container में ये ID है but the same ID can be in some other class as well. Yes you can, yes you can. Okay, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ. अगर मैं इसको आईडी दे दूँ कंटेनर वन, ठीक है, फिर मैं इसको सेव करके यहाँ पे हैशटैग कंटेनर वन लिखूंगा और मैं इसको बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ. बैकग्राउंड कलर इसका मैं लिख देता हूँ 16 नहीं, इससे तो दिखेगा ही नहीं. हाँ वायलेट करके लिखिएगा. ठीक है, व्हेन आई सेव दिस एंड रीलोड दिस, देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर वायलेट हो गया. दिस इज बिकॉज आईडी का जो स्टाइल होता है इट एक्चुअली ओवरराइड्स द स्टाइल ऑफ क्लासेस. ठीक है, तो मैंने क्लास में डिफाइन किया था कि बैकग्राउंड कलर इज 000. यस हाँ that I understood. Now what I was asking is कि मैंने लिख दिया डॉट कंटेनर के आगे ही can we specify the ID? So for example as you Like said this. the example was हाँ ऐसे. आई थिंक इसका मतलब ये है कि आप कंटेनर के अंदर एक एलिमेंट को रेफर कर रहे हो जिसकी आईडी Yes. कंटेनर बना है, जस्ट लाइक दिस. हाँ हाँ, तो बेसिकली अब आईडी द सब एलिमेंट की अलग होती है. अगर मैंने इसको कुछ आईडी दी जैसे कि क्लास इक्वल्स टू हेडिंग 1, सॉरी आईडी हेडिंग 1, ठीक है, एंड व्हेन आई वांट टू रेफर दिस आईडी इनसाइड CSS मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हेडिंग 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द थिंग इज आईडी सबकी अलग है हर एक एलिमेंट की. इट डजंट मैटर कि कौन से डिव में है वो, हर एक एलिमेंट की आईडी अलग है. तो आई डू नॉट इवन नीड टू राइट डॉट कंटेनर ओवर हियर. इट विल वर्क इन द सेम वे. okay. ओके, तो मैं इस एग्जांपल से ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली अगर आप कोई आईडी लेते हो और कंटेनर लेते हो सेम एलिमेंट पे, तो जो आईडी के स्टाइल्स है दोस विल ओवरराइड द स्टाइल्स ऑफ CSS. तो अगर सपोज करो मैंने आईडी में लिखा था यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज वायलेट, एंड मैंने अपनी क्लास में लिखा था कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा ब्लैक है. सो एज यू गाइज कुड सी माय बैकग्राउंड हियर बिकेम ब्लैक वायलेट बिकॉज आईडीज का जो स्टाइल होता है वो क्लासेस को ओवरराइड कर जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब द थिंग इज कि हम लोग जनरली CSS में आईडीज नहीं यूज करते. इट इज नॉट अ गुड डेफ प्रैक्टिस बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब वही सेम स्टाइल यूज करना पड़ जाए अपने कोड में वापस. तो इसलिए इट इज सजेस्टेड कि आप क्लास का यूनिक नेम दो एंड फिर भी आप क्या बोलते हो उसे, क्लासेस का यूनिक नेम दो एंड क्लासेस यूज करो, क्योंकि नेवर नो बाद में कब यूज करना पड़ जाए. तो इट इज बेटर नेवर टू रिपीट योर कोड. इसको हम लोग, ये एक्चुअली एक डेव का रूल है, डू नॉट रिपीट योर कोड. ठीक है, तो अच्छा डेव वही होता है जो अपना कोड रिपीट नहीं करता. बट देन आईडीज का यूज क्या, आईडीज का मेन यूज आता है जावास्क्रिप्ट. नाउ जावास्क्रिप्ट if you don't know is basically the logic that lies behind all of the buttons we click,
ऑल ऑफ द टेक्स्ट वी इनपुट। हाँ देखो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी टेक्स्ट मैंने डाला था ये चेंज हो गया। मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ दिस कोड दैट आई हैव रिटन। अब नाउ मेनी ऑफ अच्छा यहाँ पे सब लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है कोई भी, वेदर इट बी पाइथन जावास्क्रिप्ट कोई भी? लुआ HTML चलेगी। का? Python, सॉरी JavaScript, Python, JavaScript, TypeScript. Python, Nice. CSS. Will HTML count? CSS is not CSS and HTML Lua. are not programming languages. No, like Python, JavaScript, C, meant- C++. Some. No, I meant C++, not I CSS. see. Oh, okay, C++. Does Lua count? Yeah, Lua counts. And okay, so I guess almost everybody knows some programming language or the other. So आपके लिए understand करना easy होगा JavaScript. But don't worry, जिनको नहीं पता, I would be explaining you guys from scratch. Okay, so basically let username. अच्छा तो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ. Okay, I will be building another file over here. Next.html. And यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पहले तो yes, ठीक. I will be writing a h1 over here. Hello JavaScript. Okay, so अब ना it is always advised कि you guys write the script tag या तो अलग फाइल में या फिर या आप जो हो हमेशा कोड के नीचे लिख. Some people what they do is to write script file in the head. यहाँ पे हेड के सामने यहाँ पे लगा देंगे स्क्रिप्ट टैग और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देंगे. बट द प्रॉब्लम हियर अराइजेस कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको जब एलिमेंट्स रेफर करने पड़ते हैं एचटीएमएल में, तो फिर जब आप हेड में लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट जो होगी वो पहले ब्राउजर पकड़ेगा. जब ब्राउजर पोर्ट जो है ना टॉप से बॉटम रीड करता है, तो जब जावास्क्रिप्ट वो देखेगा कि पहले जावास्क्रिप्ट बन रही है, चलो जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं. बट द प्रॉब्लम जो कि अराइज होगी बाद में कि अगर मैंने सपोज करो कोई एलिमेंट रेफर किया है जावास्क्रिप्ट में और मैंने जावास्क्रिप्ट पहले डाल रखी है ऊपर, तो ब्राउजर के हिसाब से एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको एरर पे एरर आता जाएगा. एंड बिलीव मी, जब पहली बार ये एरर आता है तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज यू डोंट नो कि ये एरर क्यों आ रहा है. बट अब तो एआई कर देता है मोस्ट चीज आपके लिए. Okay, so I'd be defining a script tag यहाँ पे. So script tag में we basically write JavaScript. मतलब नाम से डिफाइन होता है, स्क्रिप्ट लिखा है. तो यहाँ पे I'd be running this page. हाँ, तो JavaScript के लिए ना आपको यहाँ पे जनरली कुछ नहीं दिखता. You guys need to open यहाँ पे console. कॉन्सोल या तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से ओपन कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई कर सकते हो. ओके, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया और मैं कॉन्सोल में गया. तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले तो आपको एक कमांड है console.log. वो क्या करता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो. सपोज करो हेलो देयर, दिस इज भवेद ग्रोवर, अपना नाम कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर. तो देखो यहाँ पे वही सेम चीज you guys can see a log होगी. So this is the console and console.log means to print something in the console, जो कि यहाँ पे आएगा print this inside the console. ठीक है, so you guys can print anything, it doesn't matter, कुछ भी print कर सकते हैं. ठीक है, so this was pretty simple. console.log hello there, this is Bhavit Grover. And एक और चीज JavaScript में when you guys I hope you guys know about comments. मैंने आपको बताया था एक बार, बट अगर नहीं पता, भैया आपने फाइल को इस पे कैसे खोला ब्राउजर पे? एक ना एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर करके. ठीक है, तो यहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करके इसको डाउनलोड कर लो. यहाँ पे इंस्टॉल्ड है भैया. तो यहाँ पे नीचे ना जब आप इंस्टॉल कर दोगे यहाँ पे नीचे आपके पास गो लाइव का बटन है. क्लिक ऑन द गो लाइव बटन एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन यहाँ पे सर्वर. नहीं तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर कर दो और फाइल एक्सप्लोरर से होगा, इधर से नहीं, इधर से भी हो जाएगा.
ठीक है। तो हाँ भैया, ये वाला जो कोड आपका कौन सा ये डॉक टाइप वाला जो था, ये मेरे इसको क्या कहते थे, एक बार फिर से रिपीट करना। इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये मेरा आ नहीं रहा, मैंने उसको किया है। अच्छा, ऐसे करने से नहीं आ रहा। नहीं एक बार फिर से करके देखो, मतलब आ जाना चाहिए। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट होता है VS कोड में इंटीग्रेटेड। आया नहीं, पर मैंने पूरा टाइप कर दिया तब भी नहीं आ रहा। अच्छा, पूरा टाइप नहीं करना, बस आपको यही टाइप नहीं, करना। पूरा नहीं, पूरा भी नहीं किया, लाइक उसके मैंने आपका डाला, ये बस एक एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क मार्क डालो। डाला। हाँ, हाँ, नहीं आया फिर मेरे पास। ये नीचे ये नहीं दिखा रहा, नीचे ये तो दिखा रहा है। फिर एंटर दबाना होगा। अच्छा, जैसे ही ओके। टाइप कर, वो हाँ। मुझे पूरा दिखा नहीं रहा था साइड पे। ओके, अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड। कोई ना कोई ना। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, तो बेसिकली फिर एक सेकंड, कैमरा हो गया। हाँ, सो बेसिकली फिर console डॉट लॉग यहाँ पे मैंने कर दिया। तो console लॉग क्या करता है, दिस बेसिकली पुट्स जो भी आप यहाँ पे लिखोगे इनसाइड द console ओवर हियर, एंड यू कैन सी। यहाँ पे आपको अगर एक लिंक भी दिखा रहा होगा, मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा console में। यहाँ पे एक लिंक भी दिखा रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यू गाइस कैन सी एक्चुअली कि ब्राउजर में ये है कहाँ पे एक्चुअली। ठीक है। फिर नाउ अब कमेंट कर दूंगा मैं इसे। कमेंट का बेसिकली ये मतलब है, पहली बात तो VS कोड आपको ग्रे आउट कर देगा ये। एंड ग्रे आउट करने का मतलब है कि दिस कोड विल नॉट बी read by the browser and it will not be ran by the browser। ठीक है। सो दिस मीन्स कि ये ब्राउजर इग्नोर कर देगा ये कोड। एंड अब देखो यहाँ पे कुछ भी कंसोल लॉग में, अब मैं यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें कमेंट करता रहूँ। कमेंट करने के लिए यू गाइस बेसिकली पुट डबल फॉरवर्ड स्लैश, या फिर VS कोड में देयर इज आल्सो शॉर्टकट कंट्रोल स्लैश। वो आपको कंट्रोल स्लैश करोगे तो कमेंट कर देगा, वापस करोगे तो अनकमेंट कर देगा। तो दिस बिकम्स वेरी हैंडी बिकॉज फिर आप बहुत सारा कोड सिलेक्ट करके एक साथ उसको कमेंट कर सकते हो। तो क्वाइट यूजफुल फीचर। उसके बाद फिर अब हम लोग ना वेरिएबल्स पढ़ते हैं। तो in JavaScript you have three ways to define a variable. First of all, var. Var is the most flexible type of क्या बोलते हैं उसे, defining a variable. So defining a variable, three types. तो पहला हमारे पास आता है var. So var a is equals to, कुछ भी लिख दो, a मत लिखो, name is equals to Bhavet। ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, var इज बेसिक। अच्छा, अगर आप लोग पाइथन से आए हो तो पाइथन में व्हाट यू गाइस वुड हैव डन इज बेसिकली नेम इज इक्वल्स टू ओपन स्ट्रिंग भवेल, ऐसे है ना। बट अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट वर्क इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको एक क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने से पहले एक यहाँ पे कीवर्ड डालना पड़ता है। एंड मोस्टली यू गाइस विल यूज लेट, बट वार भी समझना जरूरी है। बेसिकली वार इज कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, एंड इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वार कोई, मतलब जब आप वार से कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो इट्स बेसिकली कि इसके अंदर कुछ भी आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी चेंज हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका फर्क नहीं पड़ता जावास्क्रिप्ट को, वो आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। तो बहुत फ्लेक्सिबल है ये, एंड दैट इज समथिंग जो कि हम लोगों को कभी कभी प्रोग्राम्स में नहीं चाहिए। बिकॉज अभी डेवलपर्स के लिए तो ये इजी है, हमने सब कुछ बाहर बना दिया एंड फिर हम चेंज करते जा रहे वेरिएबल को। बट देन प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स यू डोंट नो कि किसी ने क्या पता कभी वेब असेंबली में जाके आपका कोड डिकोड करके उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, एंड उसको कुछ ना भैया, कुछ। यस। भैया मेरा वार रेड में क्यों आ रहा है? बाहर रेड में आ रहा है। हाँ अच्छा, तो एक सेकेंड, आपने ये एग्जैक्ट कोड लिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाला है, हाँ हाँ, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज। सारा का सारा कमेंटेड है, हम्म। वो आपका बार रेड में आ रहा है। हाँ, दैट मीन्स रेड में इट्स तो एन नहीं आ एरर। रहा है। मेरा एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। दिस अच्छा, इज एक दिस बार मीन्स इट्स स्क्रीन एन शेयर कर एरर, दो। राइट? अगर रेड हाँ, है, दिस रेड मीन मीन्स से इट्स एन नेदर। एरर।
कैन यू शेयर स्क्रीन एक बार, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। प्रेजेंटर, अरे नहीं, आई मेड यू प्रेजेंटर, काइंडली शेयर स्क्रीन, मैं शेयर करूँगा। var is हम्म coming in red. अच्छा नहीं, मेरा एक्चुअली ना VS कोड में कोड की कलरिंग थोड़ी अलग है। दिस इज परफेक्टली फाइन, कुछ गलत नहीं है इसका। वो बस Okay. कोड नेम जो है वार अलग कलर में आ रहा है। दिस इज नॉट एन एरर। अगर एरर आता तो फिर आपको ना VS कोड में नीचे भी दिखा देता है, या फिर वो स्क्विगली लाइन आ जाती। एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा तो दिस इज नहीं, परफेक्टली क्योंकि फाइन। कभी कभी मेरा CSS में एरर आता है तो वो ऑलमोस्ट इसी कलर में दिखाता है, नहीं इसलिए नहीं, I was कोई confused. दिक्कत, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बस VS कोड में कलरिंग अलग है कोड की। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू. तो okay, I will be sharing my screen once again. Share, हाँ, I hope it's visible. Okay, तो अगर आपको जो है कोड का कलर अलग दिख रहा है मेरे कोड के कलर से, तो डो नॉट बी अफ्रेड। ऑलमोस्ट सेम ही काम करेगा सबका, बस कलर अलग है मेरे वाले में। वो मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस डाउनलोड कर करके सीम्स डाउनलोड कर करके चेंज हो जाता है। सो बेसिकली दैट वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है, इफ यू गाइस डोंट नो, वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज अ बॉक्स। एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स। उसके अंदर मैंने बेसिकली क्या कर दिया, उसके ऊपर एक लेबल डाल, लेबल में मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे नेम। अभी मेरे वेरिएबल का जो नाम, बॉक्स के ऊपर जो लेबल है उसके ऊपर लिखा हुआ है नेम। एंड अब उसके अंदर जो वैल्यू डाली है, उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग, दैट इज भवित करके, या फिर जो भी आपने लिखा इट इज चेंज कर सकते हो। मैथ में भी वेरिएबल यही तो होता है बेसिकली। अगर x है, y है, z है, सो उसके अंदर भी वेरिएबल की मतलब क्या होता है, वैल्यू कैन बी चेंज्ड। उसकी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। सिमिलरली इसका भी यही है, वेरिएबल की फिक्स वैल्यू नहीं होती, कोई कांस्टेंट नहीं होता वेरिएबल, ठीक है। तो एनी डाउट्स? नो. ओके, तो ठीक। तो बेसिकली मैंने अपना जो बॉक्स बनाया है, दैट इज वेरिएबल। जो मैंने अपना बॉक्स बनाया है उसके ऊपर नेम लिखा है, उसके अंदर बेसिकली मैंने एक वैल्यू डाली है, दैट इज अ स्ट्रिंग भवित करके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और लिख दूँ, जैसे इसके अंदर मैं श्यामक लिख दूँ, तो अब मैंने बेसिकली उसके अंदर श्यामक डाल दिया बॉक्स बना के। अगर मैं इसके अंदर ऐसे करूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया भवित, सॉरी, नेम टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया भवित। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बॉक्सेस है, एक के ऊपर लेबल है नेम, एक के ऊपर लेबल है नेम टू। एक जो नेम वाला है उसके अंदर शामक है, और जो नेम टू है उसके अंदर भवित है। तो बेसिकली वेरिएबल का यही मतलब है, एक बॉक्स होता है, एंड वो बॉक्स बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे यही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। एंड यूजिंग वार्स हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ कर क्या सकते हैं, वही तो मेन पॉइंट है। तो वेनेवर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे console.log, और फिर करेंगे नेम, सिर्फ नेम लिख देंगे। तो कैन एनीवन गेस कि आउटपुट क्या आएगा? वहां श्यामक। पर वो कॉन्सोल लॉग में श्यामक दिखाएगा. एग्जैक्टली श्यामक दिखाएगा. मैंने जब कंसोल खोला, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक सेकंड पर सेव नहीं हुआ क्या? आप दूसरे फाइल अच्छा, में मैं हो। गलत कर गया, हाँ, यहाँ पे शामक आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेम टू कर दूं, तो फिर वह क्या हो जाएगा? भवित। एग्जैक्टली यहाँ पे भवित आ गया। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली वेरिएबल्स के साथ हम लोग बहुत कुछ प्ले अराउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ सॉरी। तो अगर मैंने को हाय कॉमा उसके बाद मैंने लिख दूँ नेम, तो इसके इसका मतलब क्या है,
Can anyone guess the output? Hi Shama. Exactly. Hi Shama. And space भी आ जाए because I used a comma. अगर मैं कॉमा नहीं यूज करके सिर्फ एक प्लस करता तो फिर वो शाम और कोई स्पेस नहीं आता। तो हम लोग कॉमा यूज कर रहे थे जनरली, स्पेस डालने में आसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही है। एंड इसके आगे फिर मैं अब देखो जो पिछली साइड थी क्लिकर करके उसके अंदर अगर मैं अपना नाम डालू भवित और यहाँ पे फिर हेलो भवित आ रहा था, कैन यू गाइस सी द रिलेशन? कुछ हो रहा है, हमने कैसे अपडेट किया, वेरिएबल से क्या होगा, राइट? आई थिंक कि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि कैसे हो रहा होगा ये। ओके, सो फिर अब हमने वेरिएबल से कॉन्सोल लॉग कर दिया हाय, एंड इसके अंदर आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, या फिर इसके अंदर लिख देता हूँ प्लस ग्रीट्स हेलो टू नेम टू। इसका कोई वेरिएबल इसका कोई आउटपुट बताएगा? Shama greets hello to Bhavit. एग्जैक्टली ठीक है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट आस्क। सेकंड जो तरीका होता है अगर हमारा हम वेरिएबल, अगर हम इसमें सिर्फ स्पेस डालें इंस्टेड ऑफ प्लस या फिर कॉमा, विल इट बी द सेम द रिजल्ट? स्पेस डाले मतलब इंस्टेड ऑफ प्लस अगर हम सिर्फ नॉर्मल एक स्पेस डालें तो वो ऐसे हाँ हाँ नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेम जो है वो एक वेरिएबल है। रिमेंबर, वेरिएबल हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड की तरह यूज करते हैं। दिस इज अ स्ट्रिंग, वैसे तो देखा जाए तो स्ट्रिंग है, बट जिसको हम लोग जो है जब प्लस करेंगे तो सॉरी इसके अंदर अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर दिखा रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड, जावास्क्रिप्ट आपको पहले से ही बता रहा है। बट अगर हम देखें ना ब्राउजर में, अगर मैं दिखाऊं देखो सिंटैक्स एरर आ गया मिसिंग। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये करना चाहिए था, बट हम लोगों को नहीं करना ये। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे या तो कॉमा लगाएंगे या तो वो लगाएंगे प्लस लगाएंगे, बिकॉज वी नॉट टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, वही क्या चला गया, कॉन्कैटिनेशन। हम्म, मतलब कि हम लोग जो है दो स्ट्रिंग्स को जोड़, इट्स बेसिकली द सेम एज राइटिंग शामक प्लस ग्रीट्स हेलो टू भगत। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ पे नेम कर दिया। ठीक है, डू यू गेट इट कि गलत क्यों है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस लिखना? यस ओके, तो फिर दिस वाज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हम लोग और भी अच्छे से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हैं अब, बट हमारे पास अब सेकेंड जो तरीका है वेरिएबल्स डिफाइन करने का, इट इज यूजिंग लेट। अब लेट और वार में देर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, बट लेट जो होता है वो एक लोकल स्कोप वेरिएबल होता है एंड वार जो होता है वो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप कोई फॉर लूप, आई थिंक अगर जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको शायद पता होगा फॉर लूप इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आप कोई फॉर लूप या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो दैट इज अ लोकली स्कोप वेरिएबल। एंड अगर आप जो है अपने पूरे कोड में एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, दैट इज अ ग्लोबली स्कोप्ड वेरिएबल। ग्लोबली स्कोप्ड वेरिएबल कैन बी यूज्ड एनीवेयर, लोकली स्कोप्ड वेरिएबल कैन ओनली बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्कोप। दैट इज, अगर मैंने फॉर लूप में एक वेरिएबल डिफाइन किया आई करके, तो आई कैन यूज दैट आई ओनली विद इन माई फॉर लूप, उसके बाहर आई विल बी अनडिफाइंड। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको ये फॉर लूप्स के साथ पढ़ाऊंगा, अभी शायद नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली लेट इज सिमिलर टू वार, बहुत सिमिलर है। एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ जैसे लेट नेम इज इक्वल्स टू नेम वन कर देते हैं जय, नेम टू कर देते हैं इशित। अच्छा हाँ देखो, मैंने जब सेम चीज को नेम वन किया और देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज मैं दो वेरिएबल्स को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए मतलब मेरे को दिक्कत क्यों दे रहा है ये? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के हिसाब से कि मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल्स ले रहा हूँ, बट उसका नाम सेम। दो अलग अलग आदमी नहीं हो सकते जिनका नाम सेम, मतलब हो तो सकते हैं बट दो अलग अलग ऐसे आदमी नहीं हो सकते जिनका एडमिशन नंबर सेम है, राइट? वो एरर प्रोड्यूस कर देगा आपके डेटाबेस में। सिमिलरली
दो अलग अलग लोग नहीं, वेरिएबल्स नहीं हो सकते जिनका नेम सेम। तो अगर मेरे को ये वेरिएबल क्या बोलते हैं उसे एरर फिक्स करना है, तो कोई मेरे को बता सकता है मैं कैसे करूंगा? नेम 2 कर सकते हो सेकंड वाले को। नेम टू। एग्जैक्ट, नेम टू कर दूंगा, सी एरर फिक्स हो गया। अगर एरर गलत होता है तो देखो यहाँ पे VS कोड यहाँ पे भी दिखा देता है, इसको ओपन करो यहाँ पे ये भी एरर दिखा देता है, बहुत जगह एरर दिखा देता है। ठीक है, तो बेसिकली two variables cannot have the same name, and also a variable's name cannot start with a number, it can start with an underscore, but फिर यही है कि अंडरस्कोर के अलावा नो अदर क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड विद इन द क्या बोलते हैं उसे एज द स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल, एंड अंडरस्कोर ही बेस्ट रहता है। बट जावास्क्रिप्ट में एक तरीका होता है नेम करने का, फाइल सॉरी फाइल नहीं वेरिएबल्स, एंड वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, मैं एक काम करता हूँ। हाँ ठीक है, तो वार और लेट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस ये कि एक ग्लोबली स्कोप्ड है एक लोकली स्कोप्ड है, वो हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है, दैट इज वेरी नीश। उसके बाद अब हम लोग पहली बात तो देखते हैं कि वेरिएबल को अगर मैं चेंज करूँ तो कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ name1 इज इक्वल टू भवित, और फिर मैं ये सेम एग्जैक्ट यहाँ पे इसको अनकमेंट कर दूं और यहाँ पे name1 लिख दूं, तो कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? It will be Bhavit. Bhavit Only Bhavit? creates hello to name to whatever name to is. हाँ इशित, एग्जैक्टली करेक्ट है ये, यहाँ पे देखो यही Because you didn't really fix name one to anything, right? You didn't use something like const to fix it, so you can rewrite Exactly. its value because it's a value. या एग्जैक्टली गुड। सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आई यूज्ड लेट name1 इज इक्वल टू जेट। मैंने पहले बोला कि जावास्क्रिप्ट एक बॉक्स बना, बॉक्स के अंदर एक जो बॉक्स जो है उसके ऊपर लेबल है name1 और उसके अंदर जो है जय वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और फिर मैंने उसको बोला कि name2 बनाओ जिसके अंदर सिमिलरली एक name2 बनाओ और उसके अंदर ऋषभ डाल, और फिर मैंने बोला name1 इक्वल्स टू भवित। मैंने यहाँ पे लेट नहीं लगाया, लेट लगाता तो एरर आ जाता। मैंने यहाँ पे इसे बोला name1 इज इक्वल्स टू भवित। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है मैंने जावास्क्रिप्ट को कि जावास्क्रिप्ट जो भी था पहले उसे निकाल दो और जो मैं अब डाल रहा हूँ वो डालो उसके अंदर। समझ में आई मेरी बात? भैया भी एक उसके छोटा सा डाउट था। यस, मैंने अपना वार name1 और name2 तो डाला, बट वो उस पे दिखा नहीं रहा है ऑन। कंसोल पे। हाँ ओके, मतलब यहाँ पे नहीं दिखा रहा। हाँ एक काम करो, यहाँ पे गो लाइव ऑफ करके वापस ऑन करो ओके एंड देन टेल मी, अगर फिर भी एरर आ रहा है तो आई विल चेक। ठीक है, ठीक है। तो फिर ठीक है, सो बेसिकली आई हैव चेंज द वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे यूजिंग बेसिकली सिंटैक्स होता है कि name1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी चेंज करना कर सकता है, जैसे अगर मैं कुछ भी कर दूँ यहाँ पे तो वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इट कि वेरिएबल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कैसे मॉडिफाई हो सकती है, एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो उसके बाद अब हमारे पास है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हमारे पास थर्ड होता है तरीका। कॉन्स्ट में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कुछ भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने एग्जैक्टली ये सेम कोड लिख दिया, अगर मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अच्छा इसको मेरे को वो भी करना पड़ेगा, कमेंट कमेंट कर दिया, बस मैंने इसको कॉन्स्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है? It's probably just not going. It's just going to output the first name because you set it as const, and now the variable is going to be permanent in memory. You can't really alter its value after you have defined it. एग्जैक्टली बट ये कि यहाँ पे ये मेरे को एरर देगा, एज यू कैन सी देयर इज एन एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इट विल नॉट डिस्प्ले जय यहाँ पे, इट विल बस जावास्क्रिप्ट हम लोगों को देखो ये बता नहीं रहा कि एरर है कि नहीं है। इस रीजन से हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं जनरली, बट द थिंग इज कि जब आप कंसोल में देखोगे यू गाइस विल सी कि एरर आ रहा है,
एंड जब आप देखो कि दिखा रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल और लाइन भी दिखा रहा है एग्जैक्ट कि किस पे हो रहा है ये, तो दिस मीन्स कि हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया कांस्टेंट। तो मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल जो वैल्यू है, मैंने ऐसे बोला कि भैया यहाँ पे आप एक बॉक्स बॉक्स के ऊपर एक वेरिएबल लेबल डाल दो नेम वन करके, उसके अंदर जय डाल दो और उसके बाद उस बॉक्स को बंद कर दो, पैक कर दो, सील कर दो, बस। अब उसको वापस खोल नहीं सकते आप, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपने एक बार इसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर दी तो कर दी। तो इसका मतलब दिस विल थ्रो So in simple words, we can say that const will override all the other code नहीं, ये थोड़ा गलत है variable. बेसिकली। हाँ, बेसिकली कॉन्स्ट विल नॉट ओवरराइट, कॉन्स्ट को हम ओवरराइट नहीं कर सकते। कॉन्स्ट इज बेसिकली डिफाइंड, वो एकदम खड़ा हो गया, बोल रहा है कि भाई मेरा नाम जय है तो जय ही है, मेरा नाम कुछ और नहीं है। बहुत stubborn है. बहुत स्टबर्न है यार। सो दिस विल थ्रो एन एरर सेइंग कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ऑल्टर नहीं कर सकते, कैन नॉट ऑल्टर इट्स वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल था। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट क्या बोलते हैं उसे। अब तो हमने जितना भी देखा वो कॉन्स्टेंट में था, है ना। सो अब हम लोग कुछ देखते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं कंसोल के बाहर। हम एक्चुअली में अब यहाँ पे कुछ करेंगे, ठीक है। सो डू गाइस रिमेम्बर कि हम लोगों ने इसके अंदर क्लिकर में अगर मैं रिफ्रेश करूँ और मैं भवित डालूँ तो यहाँ पे भवित आ रहा है, हेलो भवित। एंड दिस चेंजेस बेस्ड ऑन कि कौन क्या लिखा है। तो आई विल राइट अनदर H1 ओवर हियर एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो और उसके बाद में एक स्पैन लिखूंगा, स्पैन टैग। नाउ स्पैन टैग क्या होता है वो मैं हम इस पे डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आई एम जस्ट राइटिंग यूजर, ठीक है। और इसकी मैं अब आईडी दूंगा, रिमेंबर आईडी नॉट क्लास, क्लास दोगे इट विल थ्रो एन एरर। गाइस नीड टू स्पेसिफाई एन आईडी ओवर हियर। एंड इसके अंदर मैं आईडी, नेवर माइंड, सॉरी सॉरी, H1 को आईडी नहीं देनी, स्पैन को आईडी देनी। और इसको मैं आईडी इसको मैं आईडी दूंगा नेम, या फिर इवन बेटर यूजर डैश नेम, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो फिर अब मैंने ये सेव किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट पे गया। जावास्क्रिप्ट पे मैं लिखूंगा, अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट में H1 जो है रेफर करना है, आई विल राइट सम कोड। तो इसको ध्यान से देखना। कॉन्स्ट ये हमारा था यूजर नेम, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, ओके। कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख देना, मतलब स्टार्टिंग लेटर लिख दो, बिकॉज बहुत लंबा है एंड मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में। तो यूज VS कोड का ऑटो ऑटो कंप्लीशन, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे यूज कर लो, और नहीं तो एरो की से अप डाउन कर लो। एंड इसके अंदर राइट डाउन द नेम ऑफ द आईडी जो कि आपने ऊपर लिखी थी। अब इस कोड का मतलब क्या है, तो सबसे पहले we have written const, so that means this variable cannot be changed anytime in the future। and then मैंने इसका नेम दे दिया, इक्वल टू करा, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट है जो भी आपका यहाँ पे HTML में आ रहा है, जो भी HTML में आ रहा है उन सब चीजों को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बोला कि एक एलिमेंट लो जिसका आईडी है, यहाँ पे जो मैंने आईडी लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आईडी मैंने दे दी यूजर डैश नेम, और मैंने बोला कि कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर डैश नेम। दिस मीन्स मेरे पास जो एलिमेंट है ये वाला आ जाएगा, सॉरी स्पैन वाला आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉन्सोल लॉक करूँ तो बड़ी अजीब सी चीज आती है, बट एक बार दिखा देते कॉन्सोल लॉक करके। सी यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली यही सेम चीज आ गई जो मेरे को यहाँ पे लिखी थी, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर इसको कुछ चेंज कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, हम लोग उसको ऐसे करें। बेसिकली मैं लिखूंगा यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू
एंड मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सपोज करो मैंने भवित लिख दिया, भवित, ठीक है। तो कैन एनीवन गेस कि मेरे को HTML में क्या दिखाएगा? हेलो भवित। एरर नहीं, हेलो भवित। आई नो कि ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, बट आई हैव नॉट रिटर्न ऐसे, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया। whenever you write dot in front of a variable name, you are referring to one of its properties, and ये जो है एक HTML एलिमेंट है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा HTML एलिमेंट, एंड HTML एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, डॉट इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है भवित। सो बेसिकली मैंने सॉरी जिसका नाम है इनर टेक्स्ट, एंड इनर टेक्स्ट क्या है बेसिकली, ये है इनर टेक्स्ट। यहाँ पे इसके अंदर जो भी मैंने वैल्यू लिखा है वो इसका इनर टेक्स्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इनर टेक्स्ट मैंने लिख दिया भवित, एंड इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल भी तो लिख सकते हैं, एंड वेरिएबल लिखने से इसको चेंज कर सकता हूँ। भैया यस भैया आप ये VS कोड पे ही कर रहे हो ना? हाँ, क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था ना। नहीं कोई मेरे VS पर एक्चुअली काफी ज्यादा मॉडिफाइड है, तो मैं थोड़ा लग रहा होगा कि सेव करके बड़ा नीट कोड बन रही है। तो मैंने आई थिंक प्रेटियर इंस्टॉल कराया था सबको, हाँ प्रेटियर से ये हो जाता है ऑटोमेटिकली सेव पे, नहीं हो रहा होगा तो मैं बाद में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा सर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नेम लिख दूँ वेरिएबल का, तो फिर इसकी वैल्यू भी वेरिएबल के हिसाब से चेंज होगी। तो अगर मैं लिख दूँ कॉन्स्ट यूजर नेम, इसको कॉन्स्ट यूजर नेम नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर नेम फील्ड, और जो पुराना वेरिएबल है उसका मैंने बेसिकली नेम चेंज कर दिया। कैनॉट डिक्लेयर, क्या दिक्कत होगी इसे अब? अच्छा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो यूजर नेम फील्ड क्यों करा मैंने इसे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है ये, कि यहाँ पे जो मेरा स्पैन टैग है उसको मैंने बोल दिया कि इसका नाम यूजर नेम फील्ड है, क्योंकि एक फील्ड है जिसके अंदर यूजर का नेम आए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर नेम, और इसको मैं लिख दूंगा भवित, एच कैपिटल क्यों आ रहा है बाहर। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, हेलो भवित। अब मैं इसका अगर वैल्यू चेंज करूँ श्यामल, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा मैं यहाँ पे कुछ करा था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम नहीं डाला, यूजर नेम। हाँ देखो अब शामक आ गया, पहले भवित डाला था, तो यहाँ पे भवित आ गया, कुछ भी डालूंगा जय कर दूंगा, जय जय आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब इसका मतलब क्या है, मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा कॉन्स्ट के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूजर से ही उसके नाम के बारे में ले लेता हूँ। तो मैं अगर कर दूँ अलर्ट एंटर योर नेम, तो यहाँ पे अलर्ट ना बेसिकली एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड, वो क्या करता है, वो ये करता है, अरे अलर्ट नहीं सॉरी प्रॉम्प्ट, हाँ वो आपसे ये दिखा के कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया भवित, ओके किया, यहाँ पे आ, एंड अगर मैं यहाँ पे जय डाल दूँ, जय आ, अगर मैंने यहाँ पे शामिल डाला तो शामिल, मतलब कुछ भी डालोगे तो वही चीज आ जाएगी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो हमने 3 लाइंस में ये कोड दिया बेसिकली, यहाँ पे हेलो शामक, या फिर मैंने हेलो यूजर को ग्रीटिंग देने के लिए दिया, जो कि एग्जैक्टली सेम हमने यहाँ पे किया था, सही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो गया। अब हमारे पास जो है एक वो है बटन है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करके काउंटर है जो कि बढ़ रहा है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सब मिश्रा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, हम यहाँ पे करके आ रहे हैं बेसिकली। तो मैंने फिर एक काम किया, मैंने यहाँ पे ना एक बटन बनाया अपने HTML में, बटन की जो मैंने आईडी दी है एक क्लिक करके, अच्छा क्लास और आईडी का नाम सेम हो सकता है, बट बाद में जब आप रेफर करोगे तो मेक श्योर कि इसका आईडी रेफर करना, नॉट द क्लास, बिकॉज क्लास में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, वो एक डिक्शनरी बनती है, एंड फिर आपको सॉरी ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट से आपको मैप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूज आईडीज, सबसे सिंपल है आईडीज यूज करो, ठीक है। तो अगर मैंने बटन की मैंने आईडी निकाल दी, मैंने बोला कि ये बटन नाउ, बटन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्लिकर करके, ठीक है जी, क्लिकर नाम का आईडी का एक बटन ढूंढो,
मिल गया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये वाला बटन मिला। फिर काउंटर, एक काउंटर नाम का एलिमेंट लाओ जो कि आईडी है काउंटर, तो काउंटर इसकी आईडी है, तो ये वाला एलिमेंट इस वाले वेरिएबल को असाइन हो गया। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ये बेसिकली एक फंक्शन विंडो डॉट ऑन लोड, ये जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ये सिंटैक्स लिखना यहाँ पे जरूरी है। इसके अंदर हम लोग इसके हाँ ठीक है। तो अगर मैंने लिखा विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल्स टू एक फंक्शन, एक ब्लैंक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं शायद, नहीं लिख सकते, आई थिंक नेम लिख सकते हैं, जो भी होता है मेरे को याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली हम लोग हमेशा यही लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल देख लो, आपको ये कोड मिलेगा। इसको हम लोग, मैं इसको एक फनी सा नेम देता हूँ, रॉकेट शिप फंक्शन बोलता हूँ मैं इसे क्योंकि इसे यहाँ वैसे पे एक एरो रॉक, फंक्शन कहते हैं। अच्छा हाँ ऐसे आर फंक्शन भी कहते हैं, हाँ सही कह रहे हैं। तो बेसिकली ये आर फंक्शन यूज करके मैंने यहाँ पे इसके अंदर कोड डाला। अभी कोड क्या है, वही सेम कोड है जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था। बेसिकली यूजर नेम लिया मैंने प्रॉम्प्ट करके, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर नेम फील्ड जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू यूजर नेम। अब ये क्या कर दिया यहाँ पे मैंने, ये हमारे पास इनलाइन कंडीशनल स्टेटमेंट है। बेसिकली यूजर नेम, अगर मैंने इसका कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल। इसका एग्जैक्टली मतलब यही है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल के आगे इफ स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा, दिस मीन्स ये चीज होती है। तो अगर मैंने बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एंटर दबा दिया, तो फिर मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजर दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो ये हटा दूं और सिर्फ यूजर नेम कर दूं, तो अगर मैं इसके अंदर एंटर दबा दूं, खाली आ गया, एंड वी डू नॉट वांट की खाली आए। तो ये चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर थोड़ा नीट बनाना है, यू गाइस कैन यूज दिस। बट बेसिकली फिर ये है कि यूजर नेम और उसके बाद कोलन डाल के, बेसिकली पहले तो हम लोग लेते हैं यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू नल, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। क्वेश्चन मार्क से बेसिकली यहाँ पे एक वो आता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर नल नहीं है, क्वेश्चन मार्क से बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट है। बेसिकली आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम नॉर्मली यूजर नेम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बटन डॉट इवेंट एड लिस्टनर, सॉरी एड इवेंट लिस्टनर, ये क्या होता है कि मैंने जब भी बटन पे क्लिक किया, बटन पे जब भी क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना दो। जैसे मैंने डाला बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जब भी ये बटन में कोई क्लिक आएगा, ये वाला फंक्शन रन कर देगा। जब भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा जी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डाला आर फंक्शन रिकॉर्ड, बेसिकली इसका मतलब ये है लेट प्रीवियस काउंट्स इक्वल्स टू नंबर काउंट्स डॉट इनर टेक्स्ट काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट, काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस काउंट्स प्लस इक्वल्स टू 1। ये क्या लिख दिया मैंने, तो बेसिकली मैंने क्या किया, नंबर के अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने डाल रखा था 0। अगर ये वेबसाइट रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक प्रीवियस काउंट्स का वेरिएबल निकाल और उसको नंबर करके, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये जो होगा ना ये स्ट्रिंग होगा, तो नंबर के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ऐड करोगे वो 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो इसको पहले नंबर बनाना पड़ेगा, तभी वो 0 से 1 होगा, फिर 1 से 2 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नंबर लिया काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट करके, तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑलरेडी नंबर है वो मैंने लिया, नंबर काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने बोला कि काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट को क्या रखना है, प्रीवियस काउंट्स प्लस इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाय डिफॉल्ट 0 है तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। और उसके बाद मैंने इससे क्या कर दिया, मैंने बोला कि काउंटर में अब ऐसी वैल्यू सेट कर दो जो कि इसके +1 के बराबर है, तो 1 आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर अगले काउंट में क्या, अगले अगर मैंने अगली बार क्लिक किया क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 है, जैसे आप देखो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आया, और इसके अंदर फिर मैंने +1 कर दिया तो 2 आ गया। यही सेम चीज हो रही है, फिर इसके अंदर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर ऐसे 3 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही हमारा मेन लॉजिक था इस कोड का। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अच्छा मैंने विंडो डॉट ऑनर तो बताया नहीं क्या होता है।
तो बेसिकली विंडो डॉट डाउनलोड ये होता है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली पूरी लोड हो जाएगी तो फिर हम लोग ये प्रॉम्प्ट दें, अगर लोड नहीं हुई तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो अगर काफी हैवी वेबसाइट है, इमेजेस के साथ भर रखी है, तो पूरी जब वो लोड हो जाएगी तभी ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ओके, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये कोड कैसे काम करा। इफ एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो। भैया मित्रा नेट में विंडो डॉट डाउनलोड नहीं है क्या? नेट मैंने अमित नेट एक्चुअली ना एक अलग चीज यूज करता है, जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करता वो डॉट नेट फ्रेमवर्क की चीज है, वो यूज करता है, तो उसके बारे में मेरे को अच्छे से पता नहीं है। अच्छा ओके। ये सेशन की लास्ट क्लास थी ना? ये वेबडी की लास्ट क्लास है, इनफैक्ट ये टीजी की लास्ट क्लास है, मतलब इसके आगे टीजी की जो क्लास प्लान है आज के लिए वो होगी एंड वो लास्ट होगी। सो इट्स ऑलरेडी 8:30, तो 8:30 के बाद हमारा टाइम यही तक का था। सो बेसिकली it was a really enjoyable journey with you guys. We learned a lot of things together, and I hope you guys learned something new too. So basically, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा हमारे एक इनकमिंग कंपटीशन के बारे में, दैट इज इनटेक। अब इनटेक क्या है? बेसिकली इनटेक इज अ कंपटीशन जिसके थ्रू आप लोग सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वी गाइस कैन हायर यू इनसाइड टेक्सटिंग। बेसिकली हम आपको इंडक्ट कर सकते हैं इनटेक के थ्रू। सो इफ यू गाइस इनटेक में वेबटिंग में पार्ट लेना, आई होप आई विल सजेस्ट कि सब लोग इनटेक में पार्टिसिपेट करो। वी गाइस विल गिव यू अ प्रॉम्प्ट। एक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे हम आपको, जिसके अंदर आपको एक वेबसाइट बनानी है, एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट वांट सम व्हाट्सएप लेवल बैकएंड्स और समथिंग, बहुत सिंपल सी वेबसाइट चलेगी, एंड ट्राई नॉट टू यूज एआई और वाइब कोडिंग फॉर दैट। भैया वो जैसे कि इस कंपटीशन के लिए भैया आप लिंक भेजोगे ना? हाँ, लिंक अभी वो कंपटीशन शुरू नहीं हुआ। भैया मैं जैसे कि आज आपने समझाया कैसे ये कोडिंग करते हैं, तो वो बताएंगे ऐसा कुछ या नहीं? वहां पे नहीं, वो तो कंपटीशन है, वहां पे हम आपको बताएंगे नहीं, ये सिखाने के लिए सिर्फ यही क्लासेस थी टीजी करके। अब दिक्कत ये टीजी में टीजी, अच्छा आई थिंक आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है।